Good morning, class 9. Today I am going to start chemical steps in respiration. Actually, my B.Ed examining is going on. That's why I am not able to come into the school for taking your live class. I'm just doing video. So look at your book. Which point actually I'm going to mention. First देखो, सबको पता है aerobic respiration के बारे में. Aerobic respiration taking place in the presence of oxygen. Look at the molecular formula. Glucose plus oxygen, it can produce carbon dioxide, water. उसी के साथ 686 किलो कैलोरी और मोल एनर्जी. So the above equation depicts the chemical substances in mole. So in this equation, chemical substances के अंदर जो एनर्जी पैदा हो रहा है उसको हम मोल में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं. Thus by taking 180 gram of glucose, the energy released is 686 kilocalories. So if in this reaction we will take 180 gram of glucose, then we will get 686 kilocalories. Or if expressed in kilojoules, the energy released is about 2890 kilojoule. So तुम लोगों को क्या याद रखना है? Number of kilocalories produced by the aerobic respiration, that is 686 kilocalorie or mole. Again, in this above equation, we can represent energy in the form of ATP. सबको पता है in aerobic respiration, the chemical energy is produced, that is 38 ATP. So look at this calculation. 1 mole of ATP requires 7 kilocalorie. 7 kilocalorie. अगर 1 मोल ATP से हम लोग को 7 किलोकैलोरी मिल रहा है तो 38 से मिलेगा कितना? 266. सो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 686 किलोकैलोरी. अगर वहां से हम 266 किलोकैलोरी सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा 420 किलोकैलोरी दैट रिलीज्ड एज हीट एनर्जी. सो हम लोग को जरूरत कितना हो रहा है? ओनली 266, क्योंकि 38 ATP केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो यही हम लोग का शरीर में यूज होता है. रेस्ट 428 किलो कैलोरी दैट प्रोड्यूस एज अ हीट एनर्जी. कहाँ से निकला? सबको समझ में आया? नेक्स्ट, anaerobic respiration. In animal cells, particularly in the skeletal muscle, anaerobic respiration may occur when they have to walk very fast with insufficient oxygen. So in case of human body, not only lower class organism, हम लोगों के शरीर के अंदर भी मस्क्यूलर सिस्टम के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. When we taking place lots of exercise, ठीक है, then we get feel tired for production of lactic acid, and when lactic acid accumulated in our muscle, then we feel tired. So look at the reaction. ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद फॉर्म क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP प्लस हीट एनर्जी. नेक्स्ट, इट इज अ स्लो प्रोसेस. मतलब रेस्पिरेशन के बारे में लिखा है, इट इज अ स्लो प्रोसेस. नेक्स्ट, the reaction cannot continue for a long time. The product lactic acid has a toxic effect on cell when causes muscle fatigue and aches. मतलब हम लोग मसल में क्रैम्प महसूस करेंगे, कि पेशी में खिंचाव महसूस करेंगे, पेन फील करेंगे. That is accumulation of lactic acid, because lactic acid is a toxic substance and it is also harmful for our any kind of cell. No carbon dioxide is produced. So carbon dioxide produce नहीं होता है. Total energy released per mole of glucose much less compared to aerobic respiration. Energy जितना produce हो रहा है ये much less than aerobic respiration, because सबको पता है the number of ATP that is produced in case of anaerobic respiration, that is only 2 ATP, whereas in case of aerobic respiration that is 38 ATP. It is much lesser.
नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration in plants, whereas anaerobic respiration in animals. In case of plants, products of glucose are ethanol and carbon dioxide, whereas in case of animals, the product is lactic acid. Release heat energy is more, but release heat energy is less. Carbon dioxide release causes foaming. No carbon dioxide release, so on foaming. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज. सिर्फ क्या याद रखना है, मेन प्रोडक्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दैट इज इथानॉल and carbon dioxide as a byproduct, whereas lactic acid is the main product of anaerobic respiration in animals. Heat energy in case of plants बहुत ज्यादा रिलीज होता है, but in case of animals it is much lesser. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है प्लांट्स के अंदर, बट इन केस ऑफ एनिमल्स नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन: ब्रीदिंग, gaseous transport, tissue respiration, and the last one is cellular respiration. देखो, breathing. This is a physical process in which the atmospheric air is taken in and forced out the oxygen absorbing organ, the lungs. मतलब breathing is the external process by which we can consume oxygen from atmosphere and exhale carbon dioxide through lungs. हो गया. Next, gaseous transport. The oxygen absorbed by the blood in the lungs is carried by the RBCs as oxyhemoglobin. क्योंकि पता है सबको आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. थ्रू आउट द बॉडी बाय मीन्स ऑफ आर्टरीज. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैरिड इनटू द itself through arteries. The carbon dioxide from tissues is transported to the lung by the blood by means of veins in two ways. So deoxygenated blood और कार्बोमिनो जो है वो उसको कैरी करके लेके आता है कौन, भेन, एज बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. एज बाइकार्बोनेट्स डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड पार्टली. सो बाइकार्बोनेट्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व रहता है, और इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, दे ट्रांसफर इनटू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. सो इसको कैरी करके लेके आ रहा है भेन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कैरी करके लेके जाता है कौन, आर्टरी. नेक्स्ट, टिश्यू रेस्पिरेशन. द टर्मिनल ब्लड वेसल्स, द कैपिलरीज डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी cells or tissues where oxygen diffuse through their thin walls and in a similar way. The capillaries pick up the carbon dioxide released by them. So basically टिश्यू रेस्पिरेशन जो होता है, हर सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन डिलीवर होता है. सबको पता है डिफ्यूजन का मतलब क्या है. डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर एज द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर डिलिबरेटली घुस जाएगा. देन सेम way जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल टू ब्लड इन दिस वे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा मिल जाता है. दैट इज टिश्यू रेस्पिरेशन. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, द कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस विच ऑकर इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा टोटल जो कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू बॉक्स में लिखा है, देखो, वेयर डज रेस्पिरेशन ऑकर इन अ सेल. ये 2 स्टेप है रेस्पिरेशन का, सबको पता है. रेस्पिरेशन हैव मेनली 2 स्टेप, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस वेयर इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज ऑकर्ड, and it is also taking place in cytoplasm outside the mitochondria. मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑर्गेनल है उसके बाहर होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. बट क्रेब्स साइकिल occurs inside the mitochondria and needs oxygen, where very little energy is released and oxygen is not required. So in case of glycolysis,
then oxygen required is not necessary. But in case of Krebs cycle, oxygen is needed. Next देखो, respiratory organs, breathing. The respiratory system in human consists of air passage like nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. So these are the main organs by which our respiratory system consists. They are nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. First of all, nose. The external part of the nose bears two nostril. सबको पता है हम लोग के नाक के सामने दो होल है जिसके द्वारा हम लोग नॉर्मली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं. सेपरेटेड बाय कार्टिलेजिनियस सेप्टम. इसको नीचे दाग लगाना. नॉस्ट्रिल दो है बट दो नॉस्ट्रिल एक जगह पे एक दूसरे से जुड़ जाता है मगर सामने से ये पतला सा एक कार्टिलेजिनियस पर्दा से एक दूसरे से अलग रहते हैं. उस पर्दा का नाम क्या है? कार्टिलेजिनियस सेप्टम. The hairs present in the nostril prevent large particles from entering the system. तो नॉर्मली हम लोग नाक के अंदर टच करेंगे बहुत सारा छोटा छोटा हेयर महसूस होगा. ये हेयर करता है क्या करता है? प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इनसाइड आवर नोज. बड़ा कोई चीज हम लोग का नाक में ना घुस जाए, ठीक है, उसको रोध करता है. टू नॉस्ट्रिल ओपन ए पेयर ऑफ नेसल चैम्बर. सो नॉस्ट्रिल कहाँ पे एक जगह से एक के साथ दूसरा मिल रहा है, दैट इज नेसल चेम्बर्स. द इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल चेम्बर्स परफॉर्म थ्री फंक्शन ये परफॉर्म करता है. क्या क्या? इट वार्म्स द एयर एज इट पासेस ओवर. मतलब जब हम लोग के शरीर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन घुस रहा है उसको वार्म करना काम किसका है? नेसल चेम्बर का. उसी के साथ इट एड्स मॉइस्चर टू द एयर. ठीक है. नेक्स्ट, इट म्यूका सिक्रेशन इंट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल्स. नाक में जो म्यूका सिक्रेशन होता है ऑलवेज ये नेसल चेम्बर के अंदर जितना भी हार्मफुल पार्टिकल्स घुसा है उसको इंट्रैप कर लेता है, मतलब उसको छांक लेता है. सो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ. इसीलिए हम लोग को सब ऑलवेज नाक से ही सांस लेना चाहिए. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब सर्दी जुकाम होता है नाक बंद महसूस करते हैं, हम लोग मुंह से सांस लेते हैं. उसमें क्या होता है? बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के शरीर में घुस जाता है. नेक्स्ट, an additional function of nose is to smell. The sensory cell of smell are located in the special pocket situated high up in the nasal chamber. When you smell something special, you give a little sniff which carries the odor up into his pocket. मतलब हम लोग के nasal chamber में एक स्पेशल चेम्बर है, ठीक है, जिस सेंसरी सेल के द्वारा हम लोग स्मेल को फील कर सकते हैं, चाहे वो बैड स्मेल हो या गुड स्मेल हो. सो आज के लिए यहाँ तक ही पढ़ा रहा है क्योंकि वीडियो लेंदी करना पॉसिबल नहीं है. सो फॉर टुडे अप टू दिस.